Very good morning to all students. In the previous video, we have completed our lifestyle in the eastern coastal plain and what are eastern coastal plains, right? And all these things we have done about the eastern coastal plain. Now, in this video, we will start our next topic, that is life in the western coastal plain or western coastal region. Okay, what kind of lifestyle followed by the people in the western coastal areas. Okay, and about that we will learn all of them one by one. Each and every state which are falling into the western coastal plain region, we will study about them one by one in this video. Okay, now the western coastal region extends from Rann of Kutch in Gujarat up to Kanyakumari. I already explained you the extent of western coastal plain. Okay, in the map, in the chapter on the map itself, I have explained you. One more time, we will see it. Look here. In this western part of the country, from Rann of Kutch in Gujarat, from here up to Kanyakumari, here we have this long coastline, and this western coastline is called western coastal plain. And now in this video we will learn about the states which are falling into this western coastal region. कुछ आपको देख के समझ में आ जाएगा कि कौन से स्टेट्स हैं. यहाँ गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा और बहुत सारे आइलैंड्स हैं, यूनियन टेरिटरीज़ है. All these things are there in this western coastal plain, which we are going to learn about them one by one in this video. Okay. So what are the states? Which states and union territories are there in this western coastal region? Gujarat, Goa, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Maharashtra, Karnataka and Kerala are located in this region. Now first we start with our first state, which is Gujarat. Okay. Gandhinagar is the capital of Gujarat. Ahmedabad is the largest city in Gujarat. Saurashtra is known for Gir hills and forests. अगर हम गुजरात की बात करेंगे तो फर्स्ट वी शुड नो द कैपिटल ऑफ द स्टेट, एंड द कैपिटल ऑफ द स्टेट इज गांधीनगर. And the big city, the largest city in the state of Gujarat is Ahmedabad. And you all know about Gir Hills, है ना. गुजरात गिर हिल्स के बारे में पता है आपको सबको. तो ये गिर हिल्स और गिर फॉरेस्ट जो हैं, इट इज़ लाइंग इन द सौराष्ट्र. इट इज़ नोन एज सौराष्ट्र और region. It is you can say that Saurashtra region is famous for its hill and forest. Understood? जो रीजन है सौराष्ट्र जिसे कहा जाता है, गुजरात का सौराष्ट्र जो एरिया कहलाता है, वो गिर हिल्स और गिर फॉरेस्ट के लिए फेमस है. गुजरात हैज़ फार्मर्स ग्रोइंग कॉटन, ग्राउंडनट्स, ज्वार, बाजरा एंड शुगर केन. गुजरात के जो फार्मर्स हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन भी एग्रीकल्चर है, एंड दे ग्रो कॉटन, ग्राउंडनट्स, ज्वार, बाजरा एंड शुगर केन. ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स है जो कि यहाँ के फार्मर्स ग्रो करते हैं. बिसाइड फार्मिंग मीन्स फार्मिंग के अलावा पीपल आर ऑल्सो एंगेज्ड इन सर्टेन ट्रेड्स like making salt from sea water, digging for oil, dairy farming and working in cotton textile mills. The other important occupation which are followed by the people of the state are people engaged in trades. व्यापार करते हैं. What kind of trades? Like making salt from sea water, समुद्र के पानी से नमक तैयार करना. डिगिंग फॉर ऑयल, मिनरल रिसोर्सेज में ऑयल है तो उसके लिए डिगिंग करना, खुदाई करना. डेयरी फार्मिंग मीन्स दे रियर एनिमल्स फॉर देयर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स फ्रॉम द डेयरी फ्रॉम द एनिमल्स, है ना. जैसे आपको गुजरात का एक प्लेस भी मालूम होगा, आनंद.
आनंद जगह है गुजरात में, जो कि स्पेशली डेयरी फार्मिंग के लिए, जहाँ पे अमूल, आपने अमूल प्रोडक्ट्स का नाम सुना होगा. सो इट इज़ वेरी फेमस. द आनंद प्लेस इज़ वेरी फेमस because of its dairy farming industry. Okay, then other work is people are working in cotton textile mills. कपड़ा मिल में, कॉटन की कपड़ा मिल में काम करते हैं, कपड़ा बनाया जाता है जहाँ पे, वहाँ काम करते हैं. Dairy farming especially in and around Anand is the home of Amul is very popular. ओके जो गुजरात में जगह है, आनंद जगह है, जहाँ पे डेयरी फार्मिंग, स्पेशली यहाँ पे डेयरी फार्मिंग होती है. और आपको जस्ट आई टोल्ड यू कि इसे कहा जाता है होम ऑफ अमूल. एंड दिस अमूल ब्रांड इज़ वेरी पॉपुलर ब्रांड, यू ऑल नो अबाउट इट, है ना. नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम हैज़ बीन फाउंड नियर अंकलेश्वर. और अंकलेश्वर जो है कोस्टल एरिया है गुजरात का, जहाँ पे नेचुरल गैस और पेट्रोलियम जो है वो मिलता है. तो यहाँ पे लोग, जो आपने अभी पढ़ा है कि एक अदर ऑक्यूपेशन है डिगिंग फॉर ऑयल, तो इन मिनरल रिसोर्सेज एरियाज़ में यहाँ पे लोग डिगिंग करते हैं, खुदाई का काम करते हैं इन दिस नेचुरल गैस और पेट्रोलियम रिजर्व एरियाज़. ओके, नाउ गुजरात है तो गुजरात की ऑब्वियसली आपको लैंग्वेज पता ही होगी. गुजरात के लोग क्या भाषा बोलते हैं? पीपल स्पीक गुजराती, है ना. द मेन लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल ऑफ गुजरात इज़ गुजराती. मैन वियर अ शॉर्ट फ्रॉक, धोती एंड टर्बन. एक ऊपर छोटा सा कुर्ते जैसा होता है, फ्रॉक के जैसा छोटा सा कुर्ता होता है, दैट मैन वियर, एंड उसके साथ में धोती और टर्बन पहनते हैं. अंडरस्टूड. धोती, कुर्ता एंड गांधी कैप आर कॉमनली वोन बाय मैन. और यहाँ पे जो कॉमन ड्रेस है, ये तो ट्रेडिशनल ड्रेस हो गई मैन की, फ्रॉक, धोती एंड टर्बन. एक शॉर्ट फ्रॉक होता है जो अपने वेस्ट के ऊपर, कमर के ऊपरी हिस्से तक होता है, और उसके साथ वो धोती पहनते हैं और पगड़ी लगाते हैं. और अगर हम जनरल बात करें तो एक ट्रेडिशनल ड्रेस के अलावा यहाँ पे अन्य जो कॉमन ड्रेसेस हैं वो धोती, कुर्ता और गांधी कैप होती है, जो लोग यहाँ पे पहनते हैं. जनरली जो यहाँ के मैन होते हैं वो पहनते हैं ना. विमेन वियर घाघरा, चोली एंड ओढ़नी. और जो यहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस है विमेन का, वो क्या है? घाघरा, चोली एंड ओढ़नी. इसके अलावा और भी क्लोथिंग्स आपको मिलेगी जो आजकल वेस्टर्न आउटफिट्स जो पहने जाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो. बट इफ़ यू टॉक अबाउट द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ द रीजन, सो दीज आर द ट्रेडिशनल ड्रेस worn by the men and women. Now, Gujaratis celebrate Navratras and Janmashtami with a great fervor. सो यहाँ की मेन फेस्टिवल जो यहाँ के लोग बहुत ग्रेट जॉय और जोश के साथ, उत्साह के साथ और बहुत ही हैप्पीनेस के साथ में सेलिब्रेट करते हैं, वो क्या है? नवरात्रास, और यू कैन से नवरात्रि एंड जन्माष्टमी. ठीक है. गरबा इज़ मेनली परफॉर्म्ड बाय विमेन ऑन फेस्टिवल्स. और जो गरबा है यहाँ का फोक डांस है, वो यहाँ पे फेस्टिवल्स के दौरान महिलाओं के द्वारा, विमेन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है. महात्मा गांधी वॉज बॉर्न इन पोरबंदर एंड लेटर लिव्ड इन द साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद. और गांधी जी हैं जो द फादर ऑफ नेशन, उनका जन्म भी गुजरात के ही पोरबंदर में हुआ और फिर वो बाद में साबरमती आश्रम में रहने लगे जो कि अहमदाबाद में है. ठीक है. So in short we can say Gujarat is a very beautiful place and many visiting places are there in Gujarat, and the women wear Ghagra choli, odni, man wear dhoti kurta and Gandhi cap. Gujarati is the main language spoken by the people here, है ना. Now our next state is Kerala. हमारा next state है केरला. केरला इज़ अ लैंड ऑफ कोकोनट्स. केरला को लैंड ऑफ कोकोनट्स कहा जाता है. क्यों? बिकॉज ऑफ मैनी कोकोनट ट्रीज आर ग्रोन हियर एंड कोकोनट इज़ अ इम्पॉर्टेंट फ्रूट विच इज़ ग्रोन इन दिस कोस्टल रीजन ऑफ केरला. वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम कोकोनट. हमें कोकोनट से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं. मीन्स एवरी पार्ट ऑफ द कोकोनट इज़ वेरी यूजफुल. हाउ? Listen here, you will get the answer.
द हस्क इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कॉयर मैट्स एंड कारपेट्स। जो आपने नारियल के ऊपर का सबसे ऊपर का जो हस्क देखा होगा, जिसको हम निकालते हैं ब्राउन कलर का बिफोर, जो उसको हम फोड़ते हैं नारियल को, उसके पहले हम जब उसको पील ऑफ करते हैं बिफोर द फर्स्ट, जब हम पीलिंग करते हैं उसकी, तो आपने एक ऊपर ब्राउन कलर का लेयर देखा होगा जो कि धागे जैसा, रेशे जैसा होता है। दैट हस्क इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कॉयर मैट्स एंड कारपेट्स। मैट और कारपेट बनाने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। अदर दैन कोकोनट, देन इट इज़ द आउटर पार्ट, देन शेल जो है वो उसको यूज़ करते हैं लोग कई फॉर्म में। फिर उसके बाद में जो उसका इनर पार्ट होता है, जो वाइट पार्ट होता है, उसको भी हम यूज़ करते हैं फॉर ईटिंग, मेकिंग चटनीज़ एंड डिफरेंट रेसिपीज़ आर मेड बाय द कोकोनट। उसके बाद में जो कोकोनट के अंदर का पानी होता है, दैट इज़ ऑल्सो यूज़फुल, वेरी गुड फॉर हेल्थ। सो इन दिस वे कोकोनट इज़ वेरी यूज़फुल, एवरी पार्ट ऑफ द कोकोनट इज़ वेरी यूज़फुल, है ना। और उस तरह से उसके सभी पार्ट का यूज़ किया जाता है इन डिफरेंट वेज, ठीक है। देन अदर देन कोकोनट, कोकोनट के अलावा राइस, टी, कॉफ़ी एंड स्पाइसेस आर ऑल्सो ग्रोन हीयर। अगर हम बात करें कोकोनट की, तो कोकोनट तो है ही इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे ग्रो होता है, लेकिन कोकोनट के अलावा अदर क्रॉप्स भी यहाँ पे ग्रो की जाती हैं, जैसे कि राइस, टी, कॉफ़ी एंड स्पाइसेस। रबर ट्रीज़ आर ऑल्सो फाउंड इन द स्टेट। रबर ट्रीज़ भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। द स्टेट ऑफ केरला हैज़ द मोस्ट लिटरेट पॉपुलेशन इन इंडिया। स्टेट जो केरला स्टेट है, यहाँ सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग इस राज्य में रहते हैं। मीन्स यू कैन से द पीपल एजुकेशन लिटरेसी रेट, जो पढ़े लिखे लोगों की, शिक्षित लोगों की संख्या है, वो सबसे ज़्यादा केरला में ही मिलेगी हमको। मलयालम इज़ स्पोकन बाय पीपल हियर। यहाँ की मेन लैंग्वेज क्या है? यहाँ का लैंग्वेज है मलयालम। केरला में क्या भाषा बोली जाती है? मलयालम यहाँ बोली जाती है। केरला हैज़ मैनी एक्सपर्ट क्राफ्टमैन। यहाँ पे बहुत ही एक्सपर्ट क्राफ्ट्समैन मिलेंगे आपको। ओनम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल। यहाँ का मेन फेस्टिवल क्या है? ओनम है। स्नेक बोट रेस आर हेल्ड ड्यूरिंग द ओनम। और ओनम फेस्टिवल के दौरान यहाँ पे स्नेक बोट रेसेस होती हैं, ठीक है। स्नेक बोट रेसेस आपने देखी होंगी। बहुत लंबी सी एक बोट होती है, पतली सी बोट होती है, जिसमें बहुत सारे बोट्समैन बैठ जाते हैं और रेस, जैसे जनरली रेस होती है, उसमें सबसे पहले पानी को बोट को तैर के बोट को क्रॉस से जो आपका डिस्टेंस होता है उसको कवर करना होता है ना। हियर वी हैव अ पिक्चर ऑफ बोट रेस इन द बुक। स्नेक बोट रेस, ऐसी लंबी सी पतली सी बोट होती है। मैनी बोट्समैन आर सिटिंग इन दैट बोट, और फिर उसके बाद बोट को सेल करते हैं और जल्दी से जल्दी अपने डेस्टिनेशन जो उनको दिया होता है वहाँ पे पहुँचते हैं। ओके, देन कथकली इज़ अ क्लासिकल डांस डिपिक्टिंग महाभारत एंड रामायण। क्लासिकल डांस फॉर्म क्या है यहाँ का? कथकली है। और कथकली डांस फॉर्म के माध्यम से यहाँ पे महाभारत और रामायण की स्टोरीज़ को कहानियों को लोगों तक रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस डांस फॉर्म कथकली। कोची इज़ द मेजर सी पोर्ट ऑफ केरला। और केरला का सबसे इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट क्या है? कोची। तिरुवनंतपुरम इज़ द कैपिटल ऑफ केरला। कैपिटल क्या है केरला की? तिरुवनंतपुरम, ठीक है। द नेम ऑफ द कैपिटल इज़ तिरुवनंतपुरम, ठीक है। यू डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेवल तो स्मॉल स्लेबल्स। तिरुवनंतपुरम, ठीक है। दिस इज़ द कैपिटल ऑफ द स्टेट। देन अवर नेक्स्ट स्टेट इज़ महाराष्ट्र। We have studied about Maharashtra before this also in the Deccan Plateau. Now again we will separately read it in the coastal region again. The Konkan coast is to the south of Gujarat. It's separated from Deccan Plateau by the Western Ghats. जो कोंकण कोस्ट है वो गुजरात के साउथ में है, और ये डेक्कन प्लेट्यू के द्वारा वेस्टर्न घाट्स, जो डेक्कन प्लेट्यू के जो वेस्टर्न घाट्स हैं उसके द्वारा कोंकण कोस्ट को सेपरेट करता है। मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। मुंबई क्या है? कैपिटल है महाराष्ट्र की, ठीक है। द फिल्म इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड इन मुंबई। फिल्म इंडस्ट्री जिसका नाम आपको मालूम ही होगा, बॉलीवुड, जिसे बॉलीवुड कहा जाता है, इट इज़ ऑल्सो इन महाराष्ट्र।
Maharashtra, and it is in the Mumbai city. Most Hindi and Marathi films are made in Mumbai. सभी जो फिल्में हैं वो मुंबई में यहीं पे बनाई जाती हैं. हिंदी फिल्म, मराठी फिल्म यहीं पे बनाई जाती हैं. People speak Marathi and Hindi. Both the languages are spoken by the people of Maharashtra. Understood? Dhoti kurta with Maharashtrian turban or cap is worn by man. जो मुख्य क्लोथिंग है, जो ड्रेस है यहाँ का, जो कि यहाँ के मेल पहनते हैं, मैन पहनते हैं, वो क्या है? धोती कुर्ता. और एक महाराष्ट्रियन टर्बन पहनी जाती है, उसके साथ में पहनते हैं. दैट इज़ द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ महाराष्ट्र of men. Women wear 9-yard long साड़ी draped in a traditional way. और 9 मीटर लंबी साड़ी, 9 यार्ड की लंबी साड़ी जो होती है वो यहाँ की महाराष्ट्रियन लेडीज़ पहनती हैं. और उसको पहनने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है. जिस तरह से धोती को वियर किया जाता है, कुछ उससे मिलता जुलता इसका पैटर्न होता है. Main festival of Maharashtra, we all know that it is Ganesh Chaturthi, which is celebrated with great joy and pomp. बहुत ही उत्साह और आनंद के साथ यहाँ के लोग इसे मनाते हैं. The Gateway of India is a landmark of Mumbai. मुंबई का एक मुख्य स्थल जो कि बहुत ही दर्शनीय है, जो मुख्य लैंडमार्क जिसे हम कह सकते हैं, that is Gateway of India. The seabed of Konkan coast has a very rich oil field called Mumbai High. जो कोंकण कोस्ट के सी बेड हैं, वहाँ पे क्या मिलेगा आपको? रिच ऑयल फील्ड्स मिलेंगे, जिसे क्या नाम दिया गया है? मुंबई हाई. मुंबई हाई का नाम दिया गया है. यहाँ पे ऑयल निकाला जाता है, समुद्र के अंदर ऑयल डिपॉजिट हैं उस कोंकण कोस्ट में से. बाय डिगिंग वहाँ पे अंदर से, समुद्र के अंदर से तेल निकाला जाता है. तो वो जो प्लेस है, दैट इज़ कॉल्ड मुंबई हाई. दादरा एंड नगर हवेली, अ यूनियन टेरिटरी, इज़ इन द नॉर्थ ऑफ मुंबई. और एक यूनियन टेरिटरी जिसका नाम आपने सुना होगा, दादरा एंड नगर हवेली, इट इज़ लाइंग इन द नॉर्थ ऑफ मुंबई. मुंबई के नॉर्दर्न एरिया में ये लोकेटेड है. ओके, देन many more things we have learned about Mumbai in previous chapter also, that Lavani is the dance form, है ना, and Marathi is the main language, you know it very well. ठीक है, ट्रेडिशनल. और यहाँ मुंबई में बहुत सारी प्लेसेस हैं, वर्थ विजिटिंग प्लेसेस है ना. महाराष्ट्र में अजंता एलोरा केव्स हैं, वर्थ विजिटिंग. फिर उसके बाद में त्र्यंबकेश्वर, नासिक, ऑल दीज प्लेसेस आर विजिटिंग प्लेसेस इन द स्टेट ऑफ Maharashtra, which we have studied in the previous chapter. Okay, then our next state is Karnataka. The coastal areas of Karnataka are divided between the Konkan coast and the Malabar coast. कर्नाटका का जो कोस्टल एरिया है वो कोंकण कोस्ट और मालाबार कोस्ट के बीच में बटा हुआ है. ठीक है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2, Konkan coast and Malabar coast. Bengaluru, the garden city, is the capital. जो कर्नाटका की कैपिटल है वो क्या है? बेंगलुरु है, जिसे गार्डन सिटी भी कहा जाता है. एंड वी हैव लर्न अबाउट दिस इन द प्रीवियस चैप्टर. व्हाई इट इज़ कॉल्ड गार्डन सिटी? इट इज़ कॉल्ड गार्डन सिटी बिकॉज ऑफ इट्स मैनी ब्यूटिफुल पार्क्स, है ना. बिसाइड the garden city, it is also known as the Silicon Valley of the East because of its IT कंपनीज़, है ना. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कंप्यूटर से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, उसके लिए भी ये बहुत फेमस है. इसीलिए इसे सिलिकॉन वैली ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है. दिस वी हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर. नाउ फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द स्टेट. शुगरकेन, कॉटन, ग्राउंडनट, ज्वार, rice and coffee are grown here. These are the important crops which are grown by the people in the state. Okay, people are employed in the industries producing machine tools, telephones, watches and aircrafts. उसके अलावा यहाँ के लोग इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, जिन इंडस्ट्रीज़ में क्या बनाए जाते हैं? टूल्स बनाए जाते हैं, मशीन टूल्स बनाए जाते हैं, टेलीफोन्स बनाए जाते हैं, वॉचेस बनाई जाती हैं, एयरक्राफ्ट आइटम्स बनाए जाते हैं. ठीक है, तो फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन, बट बिसाइड द फार्मिंग पीपल आर वर्किंग इन द इंडस्ट्रीज ऑल्सो. पीपल स्पीक कन्नड़. कन्नड़ इज़ द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका. ठीक है. मैन वियर धोती कुर्ता, वेमेन वियर साड़ी एंड ब्लाउज.
ठीक है। मेन क्लोथिंग क्या है, मेन ड्रेस क्या है, मैन का ड्रेस है धोती कुर्ता और वुमेन का ड्रेस है साड़ी एंड ब्लाउज। द स्टेपल डाइट इंक्लूड्स राइस, दाल, इडली, डोसा, रागी एंड हिट्टू। ये मुख्य भोजन है जो यहाँ के लोग खाते हैं। इडली डोसा आपको भी पता है, वेरी फेमस। दाल, राइस, ऑल दीज आर द इम्पॉर्टेंट और मेन फूड हैबिट ऑफ द स्टेट ऑफ कर्नाटका। दशहरा एंड उगदी आर द मेन फेस्टिवल ऑफ कर्नाटका। दशहरा और उगदी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है कर्नाटका के लोगों का, जो ये बहुत ही ग्रेट जॉय और एंथुजियाज्म के साथ मनाते हैं, पॉम्प के साथ इसे सेलिब्रेट करते हैं। कोलार गोल्ड माइंस आर लोकेटेड इन कर्नाटका। और यहाँ पे माइंस भी हैं, गोल्ड माइंस हैं जो कि कहाँ पे हैं, कोलार में हैं, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, कर्नाटका स्टेट में ही है। Understood? Now our next state is गोवा, ठीक है। गोवा इज़ अ लैंड ऑफ बीचेस। गोवा को क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ बीचेस। बहुत सारे बीचेस हैं, बहुत बड़े बीचेस की अपने बीचेस के लिए प्लेस जाना जाता है। मर्मगांव इज़ द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ गोवा। और गोवा का सबसे बड़ा पोर्ट आपको बताया था मैंने, है ना, जो समुद्र के किनारे जो प्लेस बनाए जाते हैं जहाँ पे शिप्स को लोड और अनलोड किया जाता है बाय पैसेंजर्स और बाय गुड्स। सामान जो होता है या पैसेंजर्स जो होते हैं जहाँ पे चढ़ते हैं और उतरते हैं इन शिप्स, दैट प्लेसेस आर कॉल्ड पोर्ट्स। तो गोवा का जो बिगेस्ट पोर्ट है वो क्या है, मर्मगांव। अंडरस्टूड? फार्मर्स आर हियर grow coconuts, cashew nut, rice, black pepper, mangoes and bananas. यहाँ के जो फार्मर्स है वो क्या ग्रो करते हैं, कोकोनट, कैशू नट, राइस, ब्लैक पेपर, मैंगोज एंड बनानास. These are the main crop grown by the farmers here in this state. Most of the people here are Christians and wear western clothes. यहाँ के ज़्यादातर लोग क्या हैं, क्रिश्चियन हैं, ईसाई रिलीजन को फॉलो करते हैं और वेस्टर्न क्लोथ्स पहनते हैं. मीन्स पैंट, शर्ट, जीन्स, सूट, कोट, पैंट, all these are the worn by the men, and women also wear the sarees and different other dresses also, and Maharashtrian dhoti style also worn by the women here. Okay. The fishermen mostly belong to Konkan and wear shirt, short dhoti, and women wear Maharashtrian style साड़ी. ठीक है, तो ये जो यहाँ के ट्रेडिशनल जो फिशरमैन्स हैं ये उनका ड्रेसिंग हो गया है. इफ़ वी टॉक अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ क्रिश्चियन तो दे वियर वेस्टर्न क्लोथ्स. ओके. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द फिशरमैन जो कि मुख्य यहाँ से बिलोंग करने वाले लोग हैं, जो कोंकण कोस्ट से बिलोंग करते हैं, उन लोगों का ट्रेडिशनल ड्रेस फॉर्म क्या है, शर्ट पहनते हैं और एक शॉर्ट धोती पहनते हैं. आपने जनरली देखा होगा मछुआरों का ड्रेस जो होता है, जिसे हम मछुआरा ड्रेस ही बोलते हैं जनरली अपने लोकल लैंग्वेज में. एक छोटी सी धोती होती है और शर्ट के साथ उसे पहनते हैं. और जो महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं, महाराष्ट्रियन स्टाइल में साड़ी को पहनती हैं. फिशिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन. कोस्टल एरिया है, बीचेस हैं, तो यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, फिशिंग. पीपल स्पीक कोंकणी एंड इंग्लिश. मुख्य भाषा जो यहाँ के लोग कॉमनली बोलते हैं वो है कोंकणी. कोंकण रीजन है, कोंकणी अपनी भाषा है वहाँ की, तो ये कोंकणी भाषा बोलते हैं. और साथ में इंग्लिश इज़ ऑल्सो वेरी वेल स्पोकन बाय द पीपल हियर. मंडो इज़ अ पॉपुलर फेस्टिव डांस. मंडो एक डांस फॉर्म है जो कि यहाँ के फेस्टिव ओकेजन्स पे परफॉर्म किया जाता है. द कार्निवल विच इज़ अ 3-day फेस्टिवल इज़ अ मिक्स ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर. और जो यहाँ पे कार्निवल होता है, कार्निवल मीन्स 3 days का सेलिब्रेशन होता है, 3 दिनों तक चलने वाला फेस्टिवल होता है, जिसमें ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर हमको दोनों ही कंबाइनली देखने को मिलते हैं. पणजी इज़ द कैपिटल ऑफ गोवा. गोवा का कैपिटल क्या है, पणजी है. बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस इज़ द मोस्ट फेमस चर्च इन गोवा. अगर यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है फ्रांसिस असिस का, चर्च ऑफ सेंट
फ्रांसिस ऑफ असीज, ठीक है। इट होल्ड द मोटल रिमेन ऑफ द सेंट फ्रांसिस सेवियर, जो बेसिलिका ऑफ बॉम जीजस का जो चर्च जो बहुत फेमस है, यहाँ पे क्या है, सेंट फ्रांसिस सेवियर्स के मोटल्स रिमेन रखे हुए हैं, मोटल रिमेन्स जो होते हैं वो यहाँ पे रखे हुए हैं। अनदर फेमस चर्च ऑफ गोवा इज़ द चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी, ठीक है। हियर इज़ द पिक्चर, हियर इज़ वन ऑफ द पिक्चर एंड अनदर पिक्चर ऑफ सेंट जेवियर, फ्रांसिस जेवियर, ठीक है, द चर्च बेसिलिका ऑफ बॉम जीजस, ठीक है। Here we have two pictures of these two famous churches of Goa. Okay. Now next our islands. ठीक है, that is Lakshadweep Islands. Okay. It is lying in the Arabian Sea. Okay. Now we will learn about them. Very few people live in these 36 islands. जो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ये 36 इनमें से 36 जो आइलैंड्स हैं, बहुत थोड़े लोग इन आइलैंड्स पे रहते हैं, वेरी फ्यू पीपल। लक्षद्वीप आइलैंड्स आर ऑफ द कोस्ट इन केरला इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी में केरला के जो कोस्टल रीजन से थोड़ा सा अंदर की तरफ है। फिशिंग एंड ग्रोइंग कोकोनट आर द मेन ऑक्यूपेशन। यहाँ के लोगों का मुख्य ऑक्यूपेशन क्या है, कोस्टल रीजन है, फिशिंग मेन ऑक्यूपेशन है, और उसके अलावा कोकोनट ट्रीज़ को ग्रो किया जाता है और कोकोनट्स को ही तैयार कर, जो फ्रूट उनके प्राप्त होते हैं उसी को सेलिंग और उसी से वो अपना अर्निंग करते हैं। सम ऑफ देम आर ऑल्सो एंगेज्ड इन मेकिंग कॉयर आइटम्स। कोकोनट इज़ द मेन जो प्रोडक्ट है, क्रॉप है जो तैयार की जाती है यहाँ पे, मेन जो उनके पास में सोर्स है, तो कोकोनट्स के ही प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। जैसे कि कॉयर्स के जो आइटम्स बनते हैं, कॉयर मैट्स और फ्लोर मैट्स जो बनाते हैं, वो यहाँ पे वो बनाते हैं कुछ लोग। तो सम आर एंगेजिंग इन दिस मेकिंग ऑफ कॉयर आइटम्स। द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल ऑन दीज आइलैंड इज़ द सेम एज दैट ऑफ केरलाइटिस। जैसे केरला के लोगों का लाइफ स्टाइल होता है, सेम काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल आर फॉलोड बाय द पीपल ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स is surrounded by coral reefs and lagoons. ये जो आइलैंड का ग्रुप है कोरल रीफ्स और लैगून्स से घिरा हुआ है, ये इस तरह की कोरल रीफ्स होती हैं, ठीक है। टूरिस्ट्स फ्लॉक टू लक्षद्वीप टू एन्जॉय इट्स सन ड्रेंच्ड बीचेस एंड द ब्यूटी ऑफ लैगून्स। यहाँ पे जो लोग हैं हर साल लाखों लोग विज़िट करते हैं, टूरिस्ट आते हैं, क्यों आते हैं, टू एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ लक्षद्वीप। और स्पेशल क्या है यहाँ पे, जो सन ड्रेंच्ड बीचेस हैं, डूबते जो सूर्यास्त के साथ जो बीचेस का जो व्यू होता है और जो यहाँ की लैगून्स हैं उनका जो व्यू होता है, उसको एंजॉय करने के लिए, देखने के लिए हर साल यहाँ पे कई हज़ारों टूरिस्ट जो हैं वो आते हैं और इस एरिया को विज़िट करते हैं टू एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स। Okay, so in this way we have completed our states and places located in the western coastal plain. Now our keywords, these are the keywords of the chapter: lagoon and backwater, a salt water lake beside the sea। समुद्र के किनारे जो उसका पानी होता है वो एरिया में अंदर आ जाता है और इकट्ठा हो जाता है, विच इज़ कॉल्ड लैगून। और बैक वाटर जो सॉल्टी वाटर है वो बिसाइड द सी इकट्ठा हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड सॉल्ट वाटर लेक बिसाइड द सी। ओके, लैगून्स आर ऑल्सो कॉल्ड, जिसे हम अगर हम एक लाइन में डिफाइन करेंगे तो हम क्या कहेंगे, अ सॉल्ट वाटर लेक बिसाइड द सी। लाइट हाउसेज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू, अ टावर ऑन अ सी कोस्ट विथ अ बेकन लाइट टू वार्न एंड गाइड शिप्स। समुद्र के किनारे जो कोस्ट होते हैं, उन कोस्ट पे जो पोर्ट्स होते हैं, उन पोर्ट्स के नियर और कोस्टल एरियाज़ में जो भी कोस्ट होते हैं, सी कोस्ट पे बड़े बड़े टावर्स बना दिए जाते हैं और उनमें बड़े बड़े लाइट्स लगे होते हैं, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, शिप्स को गाइड करने के लिए, उनको वार्न करने के लिए इन लाइट हाउसेस का यूज़ किया जाता है। आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ
lighthouse. Look at this picture. Here you can see the picture of lighthouse. Okay, it is used to guide the ships and warn the ships. Understood? Last is corals. Hard, colorful substance formed from the skeletal remain of tiny sea creatures. छोटे छोटे सी क्रीचर्स होते हैं समुद्र के, जो छोटे छोटे जो क्रीचर्स होते हैं, जो समुद्र में पाए जाने वाले जीव जंतु होते हैं, उनके स्केलेटल रिमेन्स के डिपॉजिट होने से, इकट्ठा होने से सब्सटेंस के रूप में, हार्ड सब्सटेंस के रूप में जो एक रिमेन्स बन जाते हैं, तो सब्सटेंस तैयार हो जाता है, विच इज़ कॉल्ड कोरल. हियर वी हैव द पिक्चर ऑफ कोरल रीफ. ये इस तरह के कोरल रीफ्स बन जाते हैं. ठीक है, दीज आर द रिमेन स्केलेटल रिमेन ऑफ द सी क्रीचर्स. अंडरस्टूड? ओके, सो we have done with the keywords also. Now in the next video we will start our things I have learned and exercises. This is enough for this video. Okay, thank you very much, students.